knowledge cannot be attained through senses and mind. This is a very common refrain that you will find in all different Indian traditions, be it Vedanta, Buddhism, Jainism, Sikhism, Sufism, and so on and so forth. There is a contrast with the Western world. The Western world says that knowledge can only be acquired through the use of senses, which it calls positivism, or through the use of mind, of which reason and logic are a part. When I was in the 4th grade, once my father remarked, fundamentals ko samjho. He asked me to understand the fundamentals of things. I did not really understand what he was telling me. But over a period of time, it started becoming clear that I must go into the very depths and roots of what I am studying and trying to understand. In a certain sense, you can say that this entire journey for the last 30 or so years has been following up that one sentence advice that he gave me. Fundamentals ko clear karo. Today, I am going to talk about those very fundamentals. Because I feel that behind every discipline, there are fundamentals. There are basic roots. And if you understand those fundamentals, the understanding of the discipline becomes absolutely clear. Many of you must be familiar with this work which Thomas Kuhn did in 1960s, titled The Structure of Scientific Revolutions. And he spoke about a particular concept called paradigm. Paradigm has become very, very common these days. Paradigm essentially is a set of assumptions behind every discipline. And these assumptions are usually not questioned. They are not critically inquired into. And then after a certain point in time, there was another individual by the name of Guba, who stated that paradigm essentially consists of ontology, that is theory of being. Every knowledge pursuit is going after the ultimate truths of existence. That gets captured or encapsulated by ontology. Paradigm also has epistemology. Simply put, what is epistemology? These are big words, right? Epistemology is knowing how you know about things. How do you pursue knowledge? And then, paradigm also has certain methodologies. Now, in order to understand Indian political thought or ancient political thought, what is required is that we understand the paradigm that has supported this exercise. This paradigm comes to us from the Vedas and from all the different inquiries that have been done by sages over a period of time. And what is the methodology that they have followed?
in very crisp terms, they stated that senses will not be able to lead you to that ultimate knowledge. Even your mind will not be able to take you to that place. So in order to know the ultimate, you have to transcend your senses and your mind. This is something which is part of our folk tradition. You know, many people who are considered illiterate will be able to tell you this. Knowledge cannot be attained through senses and mind. This is a very common refrain that you will find in all different Indian traditions, be it Vedanta, Buddhism, Jainism, Sikhism, Sufism, and so on and so forth. There is a contrast with the Western world. The Western world says that knowledge can only be acquired through the use of senses, which it calls positivism, or through the use of mind, of which reason and logic are a part. So you see that there is a quintessential difference, बहुत मूल डिफरेंस है. एक सभ्यता ये कहती है कि सेंसेस और माइंड को ट्रांसेंड करिए और उससे आपको एक जगत की दृष्टि मिलेगी. और हमारे उन सेजेस ने उसी फाउंडेशन के ऊपर हमारे सोसाइटी को तैयार किया और यही चीज़ें बहुत समय से चली आ रही थी. वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने पर्टिकुलरली रेनेसांस के बाद उन्होंने ये कहा कि नॉलेज जो है या तो रीज़न के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या फिर सेंसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. तो जब सेंसेस की बात आती है तो साइंटिफिक परसूट की बात होती है, और जब रीज़न की बात होती है तो दर्शन, फिलॉसफी, आपके डिफरेंट जितने सोशल साइंसेस हैं इनकी बात होती है. तो इस मूल बात को समझना इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए बहुत ज़रूरी है. ये पहली चीज़, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. You know, when you have to understand the differences between the Indian and the Western paradigm, revolving around ontology, epistemology, and methodology. You know, you will know that there are many different Indian traditions, many different spiritual traditions, many different yogic traditions. All these different traditions at different times have spoken about different aspects of the ultimate reality. Later Buddhism और वेदांत के अल्टीमेट रियलिटी में फ़र्क है. वेदांत कहता है कि ब्रह्म है, वही एक ब्रह्म है जो कि सब कुछ बन गया है. एक ब्रह्म इस मल्टीप्लिसिटी में, इस प्लुरैलिटी में व्याप्त है. लेटर बुद्धिज़्म कहता है कि ऐसा कोई परम सत्य है ही नहीं. मैं लेटर बुद्धिज़्म जान के कह रहा हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध ने मेटाफिजिकल मैटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा. उन्होंने चुप्पी साध ली थी इस विषय के बारे में. चुप्पी उन्होंने क्यों साधा? उन्होंने कहा कि तुम तर्क वितर्क करने लगोगे और जो मूल बात मैं बताना चाहता हूँ उसके बारे में भूल जाओगे. हम लोग वैसे भी काफ़ी दार्शनिक हैं, भारतीय लोग परंपरागत दार्शनिक हैं. तो
अल्टीमेट रियलिटी के बारे में भगवान बुद्ध का क्या कथन था, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये कहना कि भगवान बुद्ध ब्रह्म के बारे में बात नहीं कर रहे थे, यह असत्य है, यह सत्य नहीं है। जब आप इन दोनों ट्रेडिशंस में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखेंगे तो आपको बहुत सारी समानताएं दिखेंगी, देयर आर मेनी कन्वर्जेंसेस, और आपको डिफरेंसेस भी दिखेंगी। फिलहाल जो है आप डिफरेंसेस को भूल जाइए, समानता को देखिए। समानता जो है उसमें क्या आता है, उसमें प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस आते हैं। इनसे देखिए, इन बातों को बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, और इस समय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं रहा है अब। एक समय तक था, एक समय तक ये कॉमन नॉलेज था, और यही कारण है कि जिस विषय में आज मैं बात कर रहा हूँ, इस विषय के ज्ञाता आपको गांव में बहुत लोग मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी में आपको कम मिलेंगे। मैं इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं आपको एक जो तथ्य है, जो दिखता है, जो ज़मीन पे दिखता है, उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो ये सारे ट्रेडिशंस जो हैं, ये ट्रेडिशंस प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस या प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। वेदांत जो है, वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि अन्नमय पुरुष है, प्राणमय पुरुष है, मनोमय पुरुष है, विज्ञानमय पुरुष है, आनंदमय पुरुष है और सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में जो है वो यूनिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ यूनिटी और मल्टीप्लिसिटी में कोई टकराव नहीं है। द मल्टीप्लिसिटी इज वन with the oneness. But here, on the terrestrial plane, that oneness is manifesting in multiplicity, but the multiplicity does not understand or know experientially its oneness. वो भूल जाता है, वो उसका विस्मरण हो जाता है। तो अन्नमय पुरुष क्या है? अन्नमय पुरुष जो है वो टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस है, आपकी बॉडी है। जब आप अपनी बॉडी की बात करते हैं, जब आप अपने स्किन की बात करते हैं, ये अन्नमय पुरुष है। प्राणमय पुरुष क्या है? आपका जितना इमोशनल कंपोनेंट है आपके एग्जिस्टेंस के, आपके जितने भाव हैं, वो सब प्राणमय पुरुष के पार्ट हैं। मनोमय पुरुष क्या है? मनोमय पुरुष जो है वो माइंड है। मनोमय पुरुष को हमारे वेदांतिक थॉट में, हमारे वेदांत दर्शन में उसको अंतःकरण भी कहा जाता है। अंतःकरण उसको हम क्यों कहते हैं? इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हमारे आउटर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन हैं। जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा माइंड है, वो इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन है। और माइंड का, अंतःकरण का, उसका 4 पार्ट वेदांत बताता है। कहता है कि उसमें चित्त है, उसमें मनस है, उसमें बुद्धि है और उसमें अहंकार है। हमारा दर्शन एक और बात कहता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा कि परम सत्य को जानने के लिए या सत्य को जानने के लिए माइंड का, अंतःकरण का, उसके परे जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
और वो जरूरी क्यों है? माइंड हमारे ट्रेडिशन में नॉलेज का जनरेटर नहीं है, वो नॉलेज जनरेट नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब इस विषय से दिग्भ्रमित हैं। माइंड नॉलेज नहीं जनरेट करता है, माइंड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसीलिए ब्रह्म की तुलना जबकि सूर्य से की गई है, माइंड की तुलना चंद्रमा से की जाती है। चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता है, वो सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो माइंड ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकता है कि माइंड नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो जनरेट नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि हमारे दर्शन में, हमारे दर्शन शास्त्र में माइंड को बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ा गया है और उसको समझा गया है और उसको लिखा गया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। माइंड के परे जाने के लिए, माइंड के परे जाने के लिए माइंड को तोड़ना बहुत आवश्यक होता है। अब आप सोचिए कि ये कैसी विद्या है? जो हमारी यूनिवर्सिटी की विद्या है उसमें माइंड को स्ट्रांग करने के लिए जो है वो इम्पेटस पड़ता रहता है, उसके ऊपर जो है काम चलता रहता है, निरंतर काम चलता है, राइट? ये एक ऐसी विद्या है, ये कहते हैं कि आपको माइंड को तोड़ना है। माइंड को क्यों तोड़ना है? माइंड को आपके थॉट से अलग करना है। जब आप माइंड को जब आप तोड़ेंगे तो माइंड शांत हो जाएगा। मन जो है, जो माइंड है, जो अंतःकरण है, वो बहुत चंचल है। सब लोग जानते हैं इसके बारे में, गीता में भी इस विषय में वर्णन है कि बहुत ही चंचल है। और मन जब तक चंचल रहेगा तब तक उस सत्य के पास आप नहीं पहुंच पाइएगा। उस सत्य के साथ साक्षात्कार की बात तो आप भूल जाइए, आप उसके पास ही नहीं पहुंच पाइएगा। तो माइंड को शांत करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसकी एक उपमा दी गई है। उसकी उपमा क्या है? उसकी उपमा ये है कि माइंड जो है वो एक बिल्कुल तालाब के जैसा होना चाहिए, जिसमें कि जितनी गंदगी है वो तल में जाकर के बैठ गई है। पानी जो है वो क्लियर हो गया है, और जब पानी क्लियर हो जाता है और उसके ऊपर अगर सूर्य अगर पड़ रहा है या चंद्रमा पड़ रहा है तो रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही प्रोफाउंड होता है। तो मैं आपको ये मनोविज्ञान के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि माइंड जो है, माइंड सराउंडिंग डिस्कोर्स से कलर्ड हो जाता है। माइंड जो है वो एक कपड़े की तरह है, आप उसको जिस रंग में डालिएगा, जिस डाई में आप उसको डालिएगा, वो उसी तरह का रंग पकड़ लेता है। तो कभी कभी, और पर्टिकुलरली आध्यात्मिक दृष्टि से और भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से, अपना अध्ययन और अपने माइंड का अध्ययन ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको ये पता करना पड़ता है कि आपके माइंड को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आपका माइंड जो है किस चीज़ों को कहता है कि वो सत्य है, क्या गलत है, क्या बढ़िया है, क्या खराब है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो उसकी सारी ट्रेनिंग जो है वो डिस्कोर्स से होती है। हमारा माइंड जो है, हमारा जो वैचारिक दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण आज पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी परंपरा और हमारे ज्ञान परंपरा से नहीं हुई है। उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है कॉलोनियल नॉलेज का। कॉलोनियल नॉलेज इज
the knowledge which is coloring our mind. And the unfortunate part is that we never step back to look at our own mind. अंग्रेज़ों ने हमारे बारे में, हमारे अध्यात्म के बारे में, हमारे पॉलिटिकल थॉट के बारे में, हमारे सोशियोलॉजी के बारे में उन्होंने तमाम तरह की बातें लिखी हैं. आज वो सारी बातें जो हैं उसको ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं उसको सत्य मानते हैं. उसको हमारी भाषा में उसको हम क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करते हैं. हम उसको इतना सत्य मानते हैं कि उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने से शायद हमारा अस्तित्व जो है, हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, हमारे अस्तित्व के ऊपर ही आक्षेप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. हमारी आइडेंटिटी, हमारा साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, ये सब कुछ जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है. और जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात आती है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात आती है, तो हम लोग जो हमारे दार्शनिक लोगों ने जो कहा था उसके बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपितु हम उन्हीं बातों को रिगर्जिटेट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे आक्रांताओं ने हमारे ऊपर लिखा था. And the most unfortunate part is that discourse is not even taught in the universities at this point in time. How would you know that this discourse, there's nothing but falsehood in this discourse if you do not examine the veracity or the truthfulness of the discourse. अगर आप उसके सत्यता की जांच ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? उसकी जांच नहीं हुई है. उसका जांच नहीं हुआ है और उस नॉलेज के बेसिस पे आपके जितने भी सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चल रही हैं. सो लेट मी कम बैक टू वेयर आई स्टार्टेड. गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक टू द फंडामेंटल्स. जब आप फंडामेंटल्स को देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा बाप रे बाप, ये क्या हो गया है? ये तो यहाँ तो सत्य तो आप भूल जाइए, यहाँ तो सिर्फ फॉल्सहुड ही फॉल्सहुड है. और इसी जर्नी में जो पहला डिस्टॉर्टर था, जिस व्यक्ति ने हमारे सभ्यता के डिस्कोर्स को पूर्ण तरीके से, जिसने उसको मॉल कर दिया, जो कहते हैं आप, कंप्लीटली मॉल्ड इट. मैं उसके डिस्कोर्स को पढ़ रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ और बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, उसके बारे में लिख रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ. और ये मेरे लिए सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है. ये सारी चीज़ें मेरे लिए सिर्फ रिसर्च पेपर्स और किताबों में जाकर के सीमित नहीं रहने वाली हैं. क्योंकि वो फॉल्सहुड जो है, जो 19th सेंचुरी का फॉल्सहुड है, वो आपकी रियलिटी और हमारी रियलिटी आज डिटरमिन कर रहा है. आज it's determining as we speak. Now that reality will have to be critically examined. तो जेम्स मिल ने जो है एंशिएंट इंडिया के ऊपर, हिंदूज़ के ऊपर, उन्होंने 7 चैप्टर्स लिखे हैं, जिसमें 3 चैप्टर्स लिखे हैं जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ बिल्कुल एंटवाइंड हैं, ऐसे हैं, यूं बिल्कुल. उनका तीसरा चैप्टर जो है वो हिंदू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है. चौथा चैप्टर जो है वो हमारे सोशल लॉज के ऊपर है. पांचवा चैप्टर जो है वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर के ऊपर है. और उन्होंने अपने फॉल्सहुड में हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हायरार्किकल एंड ओप्रेसिव बताया है. और उसका लार्जर संदर्भ क्या था, उसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या था? उनको ये दर्शाना था, उनको ये
प्रतीत कराना था, उनको ये बताना था, दिखाना था कि हिंदू जो हैं वो अनसिविलाइज्ड और सैवेज हैं। वो इन शब्दों का बहुत ही खुले तरीके से वर्णन कर रहे हैं। He's using these words: uncivilized, uncouth, barbaric, savage, you know, all the different synonyms. जितने पर्यायवाची शब्द जो है आप ढूंढ सकते हैं अनसिविलाइज्ड का, वो आपको उन 7 चैप्टर में हिंदुओं के बारे में मिल जाएगा। अब ये जो डिस्कोर्स है, इस डिस्कोर्स ने इतना व्यापक रूप कैसे ले लिया? उस दिन मैंने इस विषय में, इसके बारे में हमने बात की कि ये डिस्कोर्स जो है वो 1817 में आया, 1819 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, 1823 तक पहुंचते पहुंचते वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हायरार्की में नंबर 2 हो गए। और वो कौन सा डिपार्टमेंट देख रहे थे? वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख रहे थे। 1930 तक पहुंचते पहुंचते जो है वो नंबर 1 हो गए। इन अदर वर्ड्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी के CEO हो गए। उनके ऊपर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ही था, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड का डायरेक्टर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हुआ करता था। ये कहानी जिसके बारे में संक्षेप में मैं बताना जा रहा हूँ, इसका विवरण कभी बाद में आकर के करूँगा। जब उस नैरेटिव का गठन हुआ तो वो सिर्फ क्या कहते हैं, वो सिर्फ किताब नहीं थी, वो 3 वॉल्यूम की किताब नहीं थी। उस किताब के बेसिस पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हमारे सोसाइटी में। और आज रियलिटी ये है कि हमारा सोसाइटी हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव है। आप इस बात को मान लीजिए। हमारा सोसाइटी हमारे पुराने समय से बहुत ही अलग हो चुका है। मैं उसी धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूं जिसको कि रोज गालियां पड़ती हैं। उसी धर्मशास्त्र में अगर एक व्यक्ति दूसरे को कटु शब्द या कटु वचन कहता था तो उसके लिए उसको फाइन्स देने होते थे। Just think about the level or degree of sophistication that existed in this society. It does not exist anymore. तो आप कहिएगा कि जो जेम्स मिल कह रहा है वो तो सत्य है क्योंकि हम आज देख रहे हैं वो चीज। मेरी नज़र में दिस इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये चेंजेस जो आप इस सोसाइटी में देख रहे हैं ये वो नैरेटिव के कंस्ट्रक्शन के बाद हुआ है। ये पहले की कहानी नहीं थी। और मैं ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स जो हैं जिन्होंने कॉलोनाइजेशन के इफ़ेक्ट को पूरे विश्व में जिसका अध्ययन किया है वो ये बात कहते हैं कि नैरेटिव पहले आती है और उसके बाद सोसाइटी के स्ट्रक्चरल चेंजेस वो बाद में होते हैं। क्योंकि सिर्फ सोसाइटी नहीं बदलती है, सोसाइटी नहीं बदलती है, मानसिकता भी बदलती है। हम लोग कितने अंग्रेज हैं मुझे इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलोनाइजेशन क्या करता है? कॉलोनाइजेशन का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकल, वो मैसिव इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। और वो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वो मनोविज्ञान में एक वॉर्टेक्स की तरह बन जाता है और वो सारा जो नैरेटिव होता है उसको सक करना शुरू करता है। एंड द कॉलोनाइज्ड दे स्टार्टेड बिकमिंग दे बिगिन बिकमिंग वन with the narrative and they become the carriers of the narrative. तो ये तो वो बात है। इस नैरेटिव का एक और इम्पैक्ट हुआ था। इस नैरेटिव का इम्पैक्ट ये हुआ था कि 1825 में जेम्स मिल और उसके बाकी साथी जो थे इन लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का गठन किया।
जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जब गठन हो गया तो ये नैरेटिव एकेडेमिया का पार्ट हो गया, और कुछ समय के बाद यही नैरेटिव ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में चला गया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की संस्थापना जो है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के ऑपोजिशन में हुई थी, उसके ऑपोजिशन में हुई थी। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के नैरेटिव को देखेंगे, इंडिया के ऊपर जो नैरेटिव को अगर आप देखेंगे जो बाद में आए, तो उसके ऊपर जेम्स मिल का जो इम्प्रिंट है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, वो आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा। यू कैन वेरी वेल से दैट यू नो दैट नैरेटिव was reproduced in that context। तो वो नैरेटिव जो है एक तरह से तो ब्रिटेन में फैलना शुरू हुआ, उसका ब्रिटेन सब जगह था, वो नैरेटिव सब जगह जाना शुरू हुआ। 1850s के बाद हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई। If my research is correct, I think Elphinstone College in Mumbai was the first institution which was established. उसके बाद धीरे धीरे और सारे institutions और universities जो हैं वो establish होने शुरू हो गए। वो narrative जो है वो narrative part हो गया। और आज का education जो है वो किसी भी डिस्कोर्स को क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करता है। वही संस्था चली आ रही है, वही परंपरा चली आ रही है। जेम्स मिल की परंपरा जो है उसको हम लोगों ने क्रिटिकली एग्जामिन नहीं किया है। जेम्स मिल ने जो मनु के धर्मशास्त्र के बारे में कह दिया, आज वही सत्य है। हमने उसके पीछे जाने की कोशिश ही नहीं की। और कहने का मैं ये सही और गलत में ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आप किसी भी टेक्स्ट को उसका जो कॉस्मोलॉजी है, उसका जो मेटाफिजिक्स है, उसके पीछे का जो दर्शन है, उसको बिना समझे आप नहीं समझ सकते। अगर आप भारतीय दर्शन को अगर आप नहीं समझिएगा तो आप एंशिएंट इंडियन पॉलिटी को नहीं समझ पाइएगा। आप नहीं समझ सकते हैं वो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कहूँ कि क्या कहते हैं, मैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में नहीं समझूंगा और जाकर के मैं केमिस्ट्री में मास्टर्स कर लूँगा, ये नहीं होने वाला है। आपको एलिमेंट्स जो हैं वो फंडामेंटल्स आपको समझने पड़ेंगे। उसकी पढ़ाई ही नहीं होती है, उसकी पढ़ाई नहीं होती है तो उसका ज्ञान भी नहीं है। तो ये इंडियन पॉलिटी जो है, जो इन लोगों ने कहा वही चला आ रहा है। वो वही हायरार्किकल, वही ऑप्रेसिव। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, उस दिन बात हो रही थी तो मैंने NCERT 6th ग्रेड की किताब निकाली और हमने कहना शुरू किया कि आप ये देखिए, वही नैरेटिव है, सटल नैरेटिव है। आज मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे उस किताब को निकाल करके रैंडमली किसी पेज को मैं खोल लूँगा और मैं आपको ये दिखा सकूँगा कि ये जेम्स मिल का नैरेटिव है, उसका इन्फ्लुएंस ये है। तो इंडियन पॉलिटी को जानने के पहले, इसके पहले कि आप जो है अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू करें और धर्मशास्त्र पढ़ना शुरू करें और शांति पर पढ़ना शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय दर्शन को समझिए। और ये भारतीय दर्शन जो है ये कॉन्कॉक्शन नहीं है, ये इमेजिनरी शार्लटन्स का जो है ये खेल नहीं है, ये ब्राह्मणिकल गेम नहीं है ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए जो बताया गया था। सबसे बड़ी बात ये है, इनफैक्ट सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारी सभ्यता के दार्शनिक ब्राह्मण थे ही नहीं। ये शायद आपको शॉकिंग लग रहा होगा। हमारी सभ्यता के दार्शनिक ब्राह्मण थे ही नहीं। हमारी सभ्यता के दार्शनिक ऋषि थे। और ऋषि जो हैं, ऋषियों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है
त्रिगुणातीत, ऋषियों को त्रिगुणातीत कहा जाता है, जो गुणों के प्रति के परे हैं। जो गुणों के परे चले गए वही त्रिगुणातीत हैं, वही ऋषि हैं। और जब तक आप गुणों से बंधे हुए हैं तभी तक आपका वर्ण है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ ऋषि जो हैं वो, जिसको कहते हैं अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आते हैं। और अगर आज गांव में चले जाइएगा तो आज भी कहा जाता है, जाति न पूछो साधु की। साधुओं की जाति नहीं होती है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके पहले कि आप ये सही और गलत का जजमेंट करना शुरू करें, आपको किसी भी टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था को आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आज परेशानी ये है कि लोग वर्ण व्यवस्था को समझते ही नहीं कि वो आया कहाँ से। वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए आपको सांख्य समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप सांख्य समझिएगा तो उसमें गुणों का वर्णन है, सत्व के बारे में कहा जाता है, रजस के बारे में कहा जाता है, तमस के बारे में कहा जाता है। जब सत्व की प्रधानता किसी व्यक्ति में होती है, और जब मैं व्यक्ति ये कह रहा हूँ तो मेल एंड फीमेल मैं दोनों को ये कह रहा हूँ, मैन में नहीं, इट्स इन अ ह्यूमन बीइंग। जब सत्व की प्रधानता होती है तो व्यक्ति वो नॉर्मली और नेचुरली प्रीडिस्पोज्ड होता है नॉलेज अक्वायर करने के लिए। हमारे उस ट्रेडिशन में अल्टीमेट नॉलेज किस चीज़ से प्रतीत किया जाता था? ब्रह्म से। तो जो व्यक्ति, आप इस बात को समझिए, ये मैं आई एम श्योर दैट दिस मस्ट बी क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट, एंड आई एम डेलिबरेटली ब्रिंगिंग दिस कॉन्वर्सेशन इनटू द पिक्चर, because I know that that this is going to raise a lot of questions and I would be interested in answering those questions. जो व्यक्ति ब्रह्म की खोज में जा रहा है वही ब्राह्मण है। बात सही और गलत की नहीं है, बात साइकोलॉजिकल है कि अगर किसी व्यक्ति में अगर किसी गुण की प्रधानता होगी तो उसका कार्य, उसका कर्म, उसका डिस्पोजिशन, उसके परसूट्स उसी गुण के अनुसार होंगे। और हमारे एंशिएंट सीयर्स ने ये बात कही, और इस बात का वर्णन वेद में आता है कि रीत और धर्म, इसमें सामंजस्य होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का गुण जो है वो एक प्रकार का स्वधर्म देता है आपको, और आप तभी तक खुश रहिएगा जब आपका वोकेशन या आपका कर्म आपके गुण के आधार पे होगा। और ये एस्पेक्ट, ये हेरिडिटरी एंशिएंट टाइम्स में नहीं था। दिस वॉज नॉट हेरिडिटरी बिकॉज दिस वॉज साइकोलॉजिकल। इसके बारे में मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात यह है कि वर्ण और वर, इसके अगर आप रूट वर्ड में अगर आप जाएंगे, अगर उसके एटिमोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो आपको शब्द मिलेगा व्री। व्री को जब आप क्या कहते हैं, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होता है टू चूज। तो जिस समय इसका गठन हुआ था, इस सोसाइटी का, इस कॉन्सेप्ट का सृजन जब हुआ था, उस समय ये हेरिडिटरी नहीं था। चॉइस इंडिविजुअल को भी था अपने वर्ण को चूज करने का, और चॉइस वेमेन को भी था अपने स्पाउस को चूज करने का।
क्योंकि मैं जो बता रहा हूं कि दोनों के रूट वर्ड जो हैं वो व्री हैं, जिसका मतलब है टू चूज। दूसरी चीज है, ये एक्सपेरिमेंट आज भी कर सकते हैं आप किसी ज्योतिष के पास जाइए, ज्योतिष को कहिए तुम मेरा जन्म कुंडली बनाओ। आप तो ज्योतिष को ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो तुम ही कहा जाएगा। कहिए उनको कि आप ये मतलब तुम बनाओ मेरा जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आप देखिएगा कि एक सेक्शन होता है वर्ण का। अब आप उसको कहिए कि तुम मेरे माता पिता का जन्म कुंडली बनाओ, आप वेरीफाई कर सकते हैं वर्ण आपके फैमिली ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये प्रथा नहीं थी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने इसको हमने खोजा नहीं है। यस, एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इट डिड बिकम हेरिडेटरी, बट द चॉइस वॉज नॉट टेकन अवे। ये कॉम्प्लेक्स मैटर है। ये इस कॉम्प्लेक्सिटी की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी तभी आपको समझ में आएगी जब आप इन सारे ग्रंथों को उठाएंगे, और ये जो सारा नैरेटिव जो चलता रहता है ना, ये कि एट्रॉसिटी लिटरेचर है, इसको लेकर के तो सिर्फ ऑपरेशन ही हुआ है। जब तक ये सोचते रहेंगे तब तक ये आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप उसको पढ़ करके समझ लीजिएगा तब आप ओपिनियन बनाइए। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ये चीज़ नहीं हो रही है। दो चीज़ें नहीं हो रही हैं। The critical examination of the discourse which was unleashed on us by the colonials, and an understanding of the discourse which was produced by our own sages, by our own authors in our own society before the colonial times. ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसके के कारण profound falsehood है। profound falsehood, ये छोटा मोटा असत्य का खेल नहीं है, ये असत्य ही है। और इसी असत्य के बेसिस पे हमारी PhDs हो रही हैं, हमारे MPhil डिसर्टेशंस हो रहे हैं, हमारे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। इन चीज़ों का क्रिटिकल एग्जामिनेशन अगर यूनिवर्सिटी में नहीं होगा तो कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो जिस तरह का कार्य मैं कर रहा हूँ उसको मैं सिचुएट करता हूँ डिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन में। आप कहिएगा कि डिकंस्ट्रक्शन जो है ये तो विदेशी शब्द है। डिकंस्ट्रक्शन की बात करूंगा तो आपको डेरिडा याद आने लगेंगे, आपको फुको याद आने लगेंगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि डिकंस्ट्रक्शन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमारे बौद्धिक ट्रेडिशन में किया गया है, और ये 2nd सेंचुरी BCE में किया गया है। नागार्जुन इसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे और विदेशियों ने इसके ऊपर काम भी किया है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 2 किताबें मिल जाएंगी, नागार्जुन एंड डेरिडा। हमारे यहाँ डिकंस्ट्रक्शन क्यों होता था? हमारे यहाँ डिकंस्ट्रक्शन होता था माइंड को तोड़ने के लिए, जिसकी बात मैं पहले आपको कर रहा था। माइंड को जब आप तोड़ेंगे, माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली आकर के शांत हो जाएगा। शांत होगा तो वो ब्रह्म के करीब आएगा, वो अल्टीमेट रियलिटी के करीब आएगा, सत्य का दर्शन कराएगा। वेस्ट में जो है वो डिफरेंट कंडीशन से हो रहा है, उसके बारे में आज मैं नहीं जाऊंगा। वो मॉडर्निज्म के फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। उनके अपने कंटिजेंसीज हैं, उनके अपने रियलिटीज़ हैं। दैट्स अ वेरी डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी को समझिए। ये सारी चीज़ जो है वो सत्य की खोज है। अगर हम सत्य की खोज करने में लग जाएंगे तो चीज़ें निकलेंगी। अगर हमको वही घिसी पिटी बातें जो चल रही हैं, अगर उसके बारे में अगर करना है, करियर बनाना है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
लेकिन अगर आप खोज करना चाहते हैं तो बहुत बहुत चीज़ें निकलेंगी, और ये चीज़ें जो हैं हमारे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और ये कह कर के मुझे पता नहीं मैं कितने समय से बोल रहा हूँ। I think I will stop. These are some of the things that I wanted to share with you. ये एक बहुत ही खुला हुआ विषय है। अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है, और मैं ये बात खुल करके कहूँगा, ये काम पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे, उनको करना भी नहीं चाहिए। ये काम स्कॉलर्स का है, ये काम स्कॉलर्स का है, और ये शोध का विषय है, ये रिसर्च का विषय है। देखिए, हर एक सभ्यता जो है, हर एक सभ्यता एक पर्टिकुलर तरीके से सोचती है, एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ों को देखती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी अपने कुछ कोड्स पे आधारित हैं। अगर आप उन कोड्स को अगर आप समझ लीजिएगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसे ऑपरेट कर रहा है, तो उनके जो मिसरिप्रेजेंटेशंस हुए हैं हमारे सोसाइटी के ऊपर, इग्नोरेंस में या डेलिबरेटली, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, ये एक दिन की बात नहीं है, ये धीरे धीरे होगा। लेकिन इसमें मैं वही जो कह रहा हूँ, फंडामेंटल्स, अगर आप फंडामेंटल्स में जाएंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फंडामेंटल्स क्या हैं, इंडियन सिविलाइजेशन के फंडामेंटल्स क्या हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझना शुरू कीजिएगा, जो मेटाफिजिकल फाउंडेशंस हैं, तो आपको इंडियन पॉलिटी एंशिएंट टाइम्स में कैसी थी उसका भी ज्ञान होगा, और आज की पॉलिटी कैसी होनी चाहिए उसका भी ज्ञान होगा। लेकिन अगर ये इंक्वायरी अगर नहीं होगी, तो जो पॉलिटिकल थॉट ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया है वही चलता रहेगा, वही केओस चलेगा, वही झगड़ा चलेगा, वही फसाद चलेगा। सोसाइटी में हार्मनी नहीं आएगी। मुझे उस दिन किसी ने क्वेश्चन किया था, केओस और हार्मनी के बारे में बात कर रहे थे। किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हार्मनी का होना बहुत ज़रूरी है। It does not mean that we should not critically inquire, but harmony is very important. Unfortunately, we have lost it. हमारे सोसाइटी में हार्मनी नहीं है। How do we get to that? How do we re-establish harmony? That's the question. But with that, I think I'll just stop and open it up. Thank you. नाम विकास कुमार है, रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। सर, मेरा प्रश्न है कि आप एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को देखिए, तो वहाँ पर सोर्स ऑफ नॉलेज और उस नॉलेज को कैसे एक्वायर किया गया, उस पर एक मेजर डिबेट देखने को मिल रहा है, और बहुत डाइवर्सिटी जो वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिली। लेकिन सर, आप 10th सेंचुरी का, ये चाहे 10th सेंचुरी के बाद में जो पीरियड देखें आप, जब दिल्ली सल्तनत या जब हफ्ती आंदोलन जो हमारे सिविलाइजेशन का पार्ट है, क्या मुगल पीरियड देखिए, तो सर उस टाइप का डिबेट देखने को नहीं मिलता। इस पॉइंट को एलेबोरेट कीजिए आप। और सर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप इंडियन फिलोसफी को आप देखें तो सर सेलिबेसी और ब्रह्मचार्य पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, किसी भी आप स्कूल ऑफ थॉट को उठा लीजिए। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका साइकोलॉजी पर ये एक्सपर्टाइज है, तो मैं सब जानना चाहता हूँ कि जो सेलिबेसी का जो कंसेप्ट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में जो देखा जा रहा है, उस पर सर सिगमंड फ्रायड और कार्ल जूंग जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या व्यू है? थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सर इस पॉइंट को लेकर। विकास जी, आपके पहले क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊँगा। देखिए, जब हम समाज का जब अध्ययन करते हैं, और पर्टिकुलरली प्राचीन सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं, तो आज ये बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं कि हमारे 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक चीज़ जो है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, और प्रभु की दया से मुझे एक सोच
आया, जो कि शायद इसमें सत्यता है, कि इन चारों पुरुषार्थों के लिए जो है ग्रंथ थे। मोक्ष के लिए आपके उपनिषद थे, वो मोक्ष शास्त्र थे। धर्म के लिए आपके धर्मशास्त्र थे। मनु धर्मशास्त्र तो सिर्फ एक हैं, बहुत सारे थे, याज्ञवल्क थे और विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र थे। अर्थ के लिए अर्थशास्त्र एक ही बचा है, और काम के लिए एक ही बचा है, काम सूत्र। लेकिन ये सारे जो हैं वो ट्रेडिशंस थे। तो धर्मशास्त्र बहुत अभी भी अवेलेबल हैं, मोक्ष शास्त्र जो हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं। अर्थ और काम के सेक्शन में सिर्फ एक ही एक टेक्स्ट बचा है। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी सोसाइटी का, देखिए हमारी संस्कृति में अगर जो कुछ कभी नहीं बदलता है तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म किसी भी मैनिफेस्टेशन में, वो टेरेस्ट्रियल मैनिफेस्टेशन में या कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में, उसमें चेंज नहीं होता है। अगर वो चेंज हो गया तो वो ब्रह्म नहीं है। और पूरा ब्रह्मांड जो है वो प्रकृति की उत्पत्ति है। ये आपको सांख्य दर्शन से ये बहुत क्लियरली आपको मिलेगा। और प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। तो सोसाइटी और कल्चर जो है वो हमेशा परिवर्तनशील है, वो हमेशा बदलता रहता है। इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। तो आज का जो ये डिस्कोर्स होता है, जबकि एंशिएंट इंडियन नॉलेज को या एंशिएंट इंडियन थॉट को उसको इटर्नलाइज कर दिया जाता है या इसेंशलाइज कर दिया जाता है या नेटिवाइज किया जाता है, जो कि कल या परसों के कॉन्फ्रेंस में एक शायद यहीं की एक स्टूडेंट है, मिताली नाम है शायद उसका, एक स्टूडेंट है, उसका प्रेजेंटेशन हुआ था। तो किसी महानुभाव ने उनसे ये क्वेश्चन किया था, and I can understand that she was not able to answer it, and that's completely understandable. इसके लिए थोड़ा और समय लगेगा, जबकि ये सारे नुआंसेस जो है वो बाद में आएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमको पीरियड्स के जो है ये चारों टेक्स्ट देखने पड़ेंगे, साथ में देखने पड़ेंगे, तब एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग किसी भी सोसाइटी की मिलेगी। अगर आप धर्मशास्त्र में अगर आप काम के बारे में अगर ढूंढिएगा चीज़ें तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्फेसिस डिफरेंट है। लेकिन एक ही पीरियड के ये चारों टेक्स्ट जो है वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देंगे किसी सोसाइटी का। तो अगर आप मान लीजिए कि धर्मसूत्र और कामसूत्र को अगर आप एक साथ अगर आप लें, आप अगर गौतम धर्मसूत्र को एक साथ ले लेते हैं और वात्स्यायन का कामसूत्र अगर आप एक साथ अगर आप ले लेते हैं, और अगर आप एक कंपैरेटिव तो नहीं कहूँगा, एक सिस्टमैटिक स्टडी अगर आप करते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमर्ज करता है। सिचुएशन ये इमर्ज करता है कि जीवन के पहले चतुर्थ भाग में सिलेबसी का एक बहुत इम्पोर्टेंस है, दूसरे भाग में उसके फुल एंजॉयमेंट के लिए। और एंड माइंड यू, कामसूत्र जो है वो सिर्फ सेक्सुअल पोजीशंस के लिए वो पढ़ने की चीज़ नहीं है। आप उसको एक सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट की तरह देखिए, बहुत चीज़ें मिलेंगी उसमें, बहुत चीज़ें मिलेंगी। और ये भी और यही नहीं, मतलब मैन वुमन रिलेशनशिप का जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस था वो आपको मिलेगा। और आप ये भी देखेंगे कि हमारी आज की सोसाइटी कितनी दूर आ गई है उससे। सेक्सुअलिटी का एक सेक्रेडनेस था, सेक्सुअलिटी के एंजॉयमेंट को जो है उसको एक स्पेस दिया गया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, देखिए अगर आप मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट को अगर आप देखें, और ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंडियन थॉट से इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं, उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। जो मनुष्य के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल चीज़ें होती हैं, अगर उनका प्रॉपर सब्लिमेशन नहीं होता है तो वो विकृतियाँ प्रोड्यूस करता है।
वो विकृतियाँ प्रोड्यूस करता है। तो ये वो सोसाइटी क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि पहले फेज़ में आप सिलेबसी को फॉलो कीजिए। सिलेबसी जो है वो आपको वो क्या करेगा, वो आपके साइको इमोशनल बॉडीली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। मैं एक मेल के पर्सपेक्टिव से ये कह सकता हूँ कि जब स्पर्म्स जो हैं वो कंट्रोल्ड रहते हैं तो एक सर्टन डेवलपमेंट क्रिएट करता है जो कि उसके शय से नहीं होता है, उसके शय से नहीं होता है। उसके बाद के फेज़ में उसका एन्जॉयमेंट है ताकि आप उससे अपने आप को साइकोलॉजिकली रिमूव करना शुरू कीजिए। आप वानप्रस्थ की तरफ जो है आप रेडी होना शुरू हुई, वानप्रस्थ और सन्यास के लिए, ताकि आप जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो पूरी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी उसकी टेलियोलॉजी क्या था, उसका एंड पॉइंट क्या था, वो क्या ये कर मोक्ष था। लेकिन इस वर्ल्ड में और उस वर्ल्ड में, मतलब मोक्ष को मान लीजिए कि अगर हम कहें अल्टीमेट, और वो अदर वर्ल्ड है, दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड और द अदर वर्ल्ड, उसमें बाइफर्केशन और डायकॉटमी नहीं थी, ये एक स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है ये स्टैब्लिश था। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट सिस्टम कि जहाँ आपको एक सर्टन समय तक रेस्ट्रेंट के लिए बताया जा रहा है, एक सर्टन लेवल के बाद उसके एन्जॉयमेंट के लिए ये कहा जा रहा है, और एन्जॉयमेंट इसलिए क्योंकि वो आपके सिस्टम, आपके साइको स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन से वो निकल जाए ताकि आप ध्यान लगा सकें। ये नहीं कि आप ध्यान लगा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, आप फिर अप्सराओं के बारे में सोच रहे हैं। इट वॉज अ वेरी वेल थॉट आउट सिस्टम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये पूरा सिस्टम जो है ये सर्टन कोड्स पे बने हुए हैं। आप लोग तो सॉफ्टवेयर के समय के विद्यार्थी हैं, अगर इनके कोड्स अगर आप समझ जाइएगा, अगेन बैक टू द थिंग, अगर वो फंडामेंटल समझ में आएगी तो ये बड़ा विचित्र ये दुनिया जो है वो निखर करके सामने आती है। दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ योर क्वेश्चन। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एशियाटिक सोसाइटी के फॉर्मेशन के बाद, और या हम कहें कि एशियाटिक सोसाइटीज़, क्योंकि पहला 1784 में आया था, उसके बाद में और भी सोसाइटी जो है उनका गठन हुआ था। उसके बाद जो इंडियन टेक्स्ट का जो ट्रांसलेशंस हुआ है, उसने यूरोपियन थॉट को बहुत ही प्रोफाउंडली ऑल्टर किया है, इन्फ्लुएंस किया है। और साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों में इंडियन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न थॉट के अगर आप इवोल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि एक फॉल्ट लाइन है, देयर इज़ अ फॉल्ट लाइन। मेरा ये मानना है कि मार्क्स के ऊपर धर्मशास्त्र का इन्फ्लुएंस है। मैंने अभी इसके ऊपर लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा। आइडियाज़ इमर्ज करने शुरू हुए हैं, और उसके लिए मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। मार्क्स की जब एनालिसिस शुरू होती है तो मार्क्स ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने इनेट नेचर का प्रोडक्ट नहीं होता है। एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने वोकेशन का प्रोडक्ट होता है, उसका कॉन्शियसनेस, वो क्या काम करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये आइडिया अनफॉर्चुनेटली मच मलाइंड धर्मशास्त्र से ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके मनु धर्मशास्त्र में और बाकी अलग धर्मसूत्र में भी दो चीज़ों का वर्णन है। उसको वर्णापकर्ष और वर्णोपकर्ष कहते हैं। वर्ण लैडर पे आप चढ़ कैसे सकते हैं और वर्ण लैडर पे आप नीचे कैसे आ सकते हैं। तो गौतम धर्मसूत्र में है कि अगर एक ब्राह्मण फैमिली आपातकाल में या किसी और कारणवश अगर क्षत्रिय का कर्म अगर 3 पीढ़ी तक करता है तो चौथी पीढ़ी में वो क्षत्रिय हो जाता है। एक ब्राह्मण फैमिली अगर वैश्य का कर्म 5 पीढ़ी तक करता है तो 6ठे पीढ़ी में वो वैश्य हो जाता है, और 6 पीढ़ी तक अगर करता है तो वो 7वें में शूद्र हो जाता है। तो there is a relationship between the vocation or the karma that one is engaging in with
द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल। और मैं ये क्यों कहता हूँ कि मार्क्स का ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो धर्मशास्त्र से प्रभावित है, क्योंकि तब तक धर्मशास्त्र का ट्रांसलेशन हो चुका था और जर्मन इंडोलॉजिस्ट भारतीय शास्त्र और भारतीय टेक्स्ट को बुरी तरह से ट्रांसलेट करने में लगे हुए थे। अब मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि मार्क्स ने किस उस जर्मन ट्रांसलेटर को पढ़ा है जिसने इसके ऊपर अपनी व्याख्या की है। बट दिस इज जस्ट वन ऑफ इट, यू नो, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स, आई कैन नॉट गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स। उसी तरह से नीत्शे के ऊपर बहुत ही डिस्टिंक्ट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है उनकी थिंकिंग में। और मार्क्स की एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मार्क्स जो है वो डायलेक्टिक्स की बात करते हैं, राइट? डायलेक्टिक्स के लिए और ये जो वृतांत है वो उनको हेगल से मिलता है, राइट? और हेगल इंडियन शास्त्र के स्टूडेंट थे। और मेरा ये लॉजिकल सबमिशन है कि आप डायलेक्टिक्स की बात तभी आप कर सकते हैं जब आप बाइनरीज को आइडेंटिफाई करें। जब बाइनरीज होंगे तभी उसमें डायलेक्टिक्स होंगे। हेगल के पहले किसी वेस्टर्न फिलोसोफर ने बाइनरीज, न तो बाइनरीज की बात की है न डायलेक्टिक्स की बात की है। और अगर आप इंडियन सिस्टम ऑफ थॉट अगर आप देखें तो ईशो उपनिषद से लेकर के अभी तक सारे सेजेस में ट्रांसेंडेंस ऑफ बाइनरीज, डाइकोटमीज एंड डुअलिटीज, इसका वर्णन आपको विस्तृत मिलेगा। इसका ये विस्तृत आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप, फ्रॉयड तो बाद में 1890s में आ रहे हैं, मैं तो आपको अर्ली 1800s के बारे में बात कर रहा हूँ, 1830s के आसपास की बात कर रहा हूँ। हेगल 1820s में लिख रहे थे। इन सब लोगों के ऊपर, और नीचे का इन्फ्लुएंस फ्रॉयड के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग है, तो इन सब के ऊपर जो है इंडियन थॉट का इन्फ्लुएंस है। हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि हम लोग शर्ट पैंट पहनने में इतना बिजी हो गए कि हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। क्योंकि हम लोगों को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला है, हमको मानसिक इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। हम बहुत बुरी तरीके से ग्रसित हैं। और जब हम उनको निकालेंगे, जब उन सारे टेक्स्ट को निकालेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम क्या थे। और वो जो है वो हमारे सोसाइटी को एक बहुत डिफरेंट लेवल पे लेकर के जाएगा। तो बाकी ये है, बाकी आप जो कह रहे थे पहले, मैंने मीडिएवल पीरियड को जो है कुछ थोड़ा बहुत उसका अध्ययन किया है, विस्तृत अध्ययन नहीं है, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर विचार अपने नहीं रखूँगा। उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये पीरियड जो है वो ज़्यादा आसान है। उसका कारण ये है कि उसका पॉलिटिकल करेक्टेडनेस है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड एज वेल। दूसरे पीरियड में जो है वो वहाँ बहुत परेशानियों का पॉसिबिलिटी है। Sir, when we understand the integral humanism through the interconnections between mind, society, and spirit, so from which the knowledge generates or thought processes can be done. So, how the thought processes can be separated from the mind, as you suggested? That's a very good question. I won't be able to answer that question from the perspective of integral humanism because I haven't really studied Deen Dayal Upadhyay ji, so it would be improper on my part to comment on his idea of integralism or integral humanism. But I can certainly share from the perspective of some sages that I have studied in detail, for instance, Sri Aurobindo. So Sri Aurobindo says that after a certain level of psycho-spiritual development, you can actually see thoughts as concrete realities entering your being and exiting your being. You know, thoughts actually become visible. And that is why, in our tradition, philosophy is not about speculation, it is about darshan. Why do we say darshan? Because the sages, the seers, actually see these thoughts.
So that's what happens. You know, when you dislocate or dislodge your consciousness from your mind, then you are able to experience and see thoughts as you are able to experience your body at this point in time. You know, you can see your body at this point in time, right? In a very similar way, the seers are able to see their thoughts, and that is why they're able to exert a certain control over their thoughts as well as their minds. Does that address your question? It becomes, you know, it's something like this. You know, you will be able to see thoughts entering your being, and then you will have this option whether you want that particular thought to enter your being or block the entrance of the thought into your being. जैसे प्रकृति का कौन सा गुण किस व्यक्ति के अंदर ज्यादा है वो ज्योतिष के हिसाब से तय आपने बताया, लेकिन क्या जब हम रूसो को जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं तो उनका वो जो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर 3 गुण है, तो ये गुण ज्यादा है तो सैनिक बनेगा, वो व्यापारी बनेगा, उत्पादक वर्ग में जाएगा, वो शासक वर्ग में जाएगा। तो क्या वो भारत की भारत का जो दर्शन है कि गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, जो रूसों ने जो ये वर्गीकरण किया व्यक्ति के अंदर 3 गुणों का, उसके पीछे का क्या आधार, क्या वो किसी तरीके से भारतीय दर्शन से प्रभावित रहेगा? ये हो सकता है। इसकी संभावना है। एक किताब है जो कि अद्वैत आश्रम प्रेस से आई है और काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च है। इट्स अ वेरी वेल रिसर्च बुक। उसका नाम है उपनिषद्स इन द वेस्ट, और उसमें कलेक्शन है आर्टिकल्स के। अब मुझे याद नहीं है कि इन्होंने किसने इस संदर्भ का वर्णन किया है। कहा तो ये भी जाता है कि प्लेटो इंडिया आए थे, ही ट्रैवल टू इंडिया, और उनके फिलॉसफी में इंडियन इन्फ्लुएंस है, उपनिषद्स का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है। वो पर्टिकुलरली कुछ मेटाफर्स जो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर तो है। जहाँ तक फिलॉसफी की बात आती है तो वेस्टर्नर्स जो हैं वो उस इंडियन इन्फ्लुएंस की बात नहीं करते हैं। वेयर इज़ इट दैट दे गिव वे, यू नो, और वो उनकी चोरी पकड़ी कहाँ जाती है? जब वो क्लास बेस्ड डिवीजन सोसाइटी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो ये जो डिवीजन है या क्लास बेस्ड सोसाइटी है, ये वेस्ट में अभी डिमोनाइज्ड है। तो वेस्ट क्या करता है? वेस्ट जिन अपने कॉन्सेप्ट्स को डिमोनाइज करता है उसको वो कॉलोनाइज्ड अदर पे, या जिसको वो अदर कर रहा है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करता है। तो जब आप क्लास बेस्ड सोसाइटी, प्लेटो के क्लास बेस्ड सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ वो इंडियन कनेक्शंस की बात करने लगते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी में लीही ने इसके बारे में लिखा है। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन इन्फ्लुएंस प्लेटो के ऊपर है। इसको और रिसर्च करने की आवश्यकता है और इसको और डिटेल्ड वे में जो है उसको दिखाने की आवश्यकता है। बट देयर इज़ वन थिंग, यू नो, विच यू मस्ट रिकग्नाइज। और मेरा इनफैक्ट मैं सुनील जी के पास मैं अपने कुछ बुक चैप्टर्स मैं भेज दूंगा। एक बहुत रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसका टाइटल है देयर इज़न्ट ओनली कल्चरल ब्लाइंडनेस इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज़ कल्चर ब्लाइंड। दिस इज़ द टाइटल ऑफ द बुक चैप्टर। इट्स अ मैं वेस्ट के अंदर आप ये अगर आप बात कह रहे हैं तो मज़ा आता है, इंडिया में बात करने में इसमें तो मज़ा नहीं है। गोरों को कह रहे हैं कि आपकी साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है वो आपके कॉस्मोलॉजी से वो इन्फ्लुएंस्ड है। तो जैसे हम आपको ये बता रहे थे कि हमारी जो सोच है, जो हमारी परंपरा है, या लेट मी पुट इट दिस वे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स और वेस्टर्न फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में मैसिव डाइवर्जेंस होता है, और वो डाइवर्जेंस होता है बाइनरीज, डायकॉटमीज और डुअलिटीज़ के ऊपर। इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम जो है वो डुअलिटीज़, डायकॉटमीज़
को ट्रांसेंड करने की बात करना शुरू कर देता है। वो सिर्फ ट्रांसेंड करने की बात नहीं करता, वो बहुत डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की भी बात करता है, जिसमें इंटरेस्टिंगली जिस डायलेक्टिक्स की बात होती है, उसी डायलेक्टिक्स का वर्णन बुद्धिस्ट लिटरेचर में प्रतीत्व समुद्पाद के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो ये भी नहीं है कि उसको रिफॉर्मुलेट किया गया था, वो प्रतीत्व समुद्पाद को जो है उसको एक नया नाम दे दिया गया, यू नो, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। तो जो मैं ये बता रहा था कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और जब बाइनरीज जब ट्रांसेंड नहीं होती हैं किसी सिविलाइजेशन में, और मैंने 12 थ्योरम्स को का इजाद किया है, और इस जो चैप्टर जो बताया इसके बारे में 7 थ्योरम्स के बारे में लिखा है, तो उसमें क्या होता है कि जब बाइनरी हाफ्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक बाइनरी हाफ को जो है उसको प्रिविलेज कर दिया जाता है और दूसरे को जो है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। ये सारे वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं वो करते हैं, ऑल ऑफ देम। और यही वेस्टर्न थिंकर्स जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं या कांटेक्ट में जब आते हैं, तो अगर वो रोमांटिक हैं तो जिन बाइनरी हाव्स को वो प्रिविलेज कर रहे हैं उसको इंडिया के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, और अगर वो कॉलोनियलिस्ट हैं तो जिनको वो सप्रेस कर रहे हैं वो इंडिया के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। और इसी चक्कर में जो है इंडिया की कहानी जो है वो लूज हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई, यू नो, अमंग्स द वेस्टर्नर्स इंडिया इज़ नथिंग बट शेयर प्रोजेक्शन। वो सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं, इंडियन रियलिटी को वो कभी कैप्चर नहीं कर पाते। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इंडियंस भी अगर बाइनरीज को अगर हम थॉट में और अपने कॉन्शियसनेस में अगर हम ट्रांसेंड नहीं करेंगे तो हम वही बिहेवियर मैनिफेस्ट करेंगे और थॉट मैनिफेस्ट करेंगे जो वेस्ट कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम दैट वी आर फॉलोइंग, हम ये चीज़ कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट।